کتاب مقدس میں سے جو آج خدا نے ہمیں سیکھنے کے لیے حوالہ جات دیے ہیں وہ یسوع مسیح کے عید سعود یا یوم سعود کے تعلق سے ہیں۔ ہم نے 26 مئی یعنی آج سے تیسرے دن پہلے اس عید کو سیلیبریٹ کیا، یا ہم نے دعاؤں میں جھکے، لوگوں نے روزے رکھے اور 26 مئی کو جو ہے وہ یوم سعود جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا دنیا پر، جس کو عید سعود بھی کہتے ہیں، یعنی یسوع کا آسمان پر اٹھایا جانا۔ اس کی غرض سے آج چند ایک حوالہ جات دیکھیں گے، وہ باتیں جو یسوع نے عید سعود پر کہی، یعنی جب وہ آسمان پر جا رہا تھا تو چند ایک باتیں جو یسوع نے کی وہ کیا تھی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ارشاد اعظم، میرے ساتھ پہلا پوائنٹ جو ہم دیکھیں گے، عید سعود کے دن یسوع نے شاگردوں سے کہا کل اختیار میرے پاس ہے۔ آمین۔ یہ حوالہ میرے ساتھ دیکھے گا متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 28واں باب، اس کی آیت نمبر 18۔ متی رسول کا انجیلی بیان 28واں باب آیت نمبر 18۔ کتاب مقدس میں یوں مکتوب ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے یہ باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آمین۔ آسمان کا، زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو بنانے کے بعد اس پر زندگی کا دم پھونکا، اور پھر چند ایک سال بعد خدا نے ہوا کو بنایا، اور وہ تمام پر چرند پرند حیوانات نباتات جمادات حشرات خدا نے بنا کر آدم کے پاس لایا اور آدم کو اختیار بخشا کہ ان کے نام رکھے اور ان پر اختیار بھی رکھے۔ خدا نے ایسا نہیں کیا کہ اس وقت خدا نے کہا ہو کہ چوپائے جو ہیں اور ان پر اختیار آدم کا، لیکن بنانے والا میں ہوں، ہوا میں اڑنے والے پرندوں پر میرا اختیار ہوگا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ خشکی پر آدم کا اختیار ہوگا اور تری پر میرا اختیار ہوگا، یعنی پانیوں پر میری حکومت ہوگی اور خشکی پر آدم کی۔ خدا نے ایسا بھی نہیں کہا۔ خدا نے بعد میں کوئی ایسی لکیر بھی نہیں کھینچی جس میں اختیار کو واضح طور سے دیکھ سکے کہ خدا کہیں پر بنانے کے بعد اختیار رکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا نے کہا یہ جو کچھ بنایا ہے یہ اس پر آدم اختیار رکھے گا۔ ہمارے مقدس میں لکھا ہے کہ آدم نے اپنے اس اختیار کو کھو دیا، گناہ کے باعث، بدی کے باعث، حکم عدولی کے باعث، خدا کی بات کو رد کرنے کے باعث، خدا کی بات کو حقیر جاننے کے باعث، خدا کی بات کو اس طرح ترجیح نہ دینے کے باعث، شیطان کی بات کو زیادہ اور خدا کی بات کو کم ترجیح دینے کے باعث، جب آدم واٹی کرنے سی گیا تھا جنہوں ہوا کو آ کے شیطان پر گلانے آتا سا، It was not doing anything. وہ بعد میں اکیلا گھومتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آدم اس وقت وہاں پر موجود ہوتا تھا لیکن منہ نہیں کھلتا تھا، منہ بند، اور سانپ جو ہے یعنی ابلیس جو ہے وہ سانپ کے روپ میں آ کر کتنے عرصہ تک ہوا کو بہکاتا رہا، اور آدم
बंदे आए, कहते कोई हाल नहीं, बेगम ने कहा अच्छा है बुरा है, बात मानी गलत नहीं है, लेकिन वो माने जो मानने वाली है। इसलिए नुकसान किसका हुआ? आदम का भी हुआ, हवा का भी हुआ। अगर वो रोक देता, क्योंकि हुक्म आदम को दिया गया था, आदम ने उस हुक्म को हवा के अंदर ट्रांसफर किया, और जब वो हुक्म अदुली हुई, उस फल को खाया, उस फल को खाने के बाद इख्तियार जाता रहा। वो जानवर जो आदम के साथ खुश असलूबी के साथ बर्ताव करते रहते, वही उसकी जान के दर पे हो गए, वही उसकी जान के प्यासे हो गए, और आदम को वहां से भागना पड़ा। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ये कुल जानवर आदम के पास आए थे, और कुछ जरूर नहीं पहुंचा आदम को। किसी ने आदम को नहीं कहा था, किसी ने आदम को, यानी इख्तियार था, इस कदर इख्तियार था आदम के पास कि वो उनके नाम रख रहे हैं और उनके साथ घूम फिर रहा है। और ये भी इख्तियार में शामिल था कि खुदा ठंडे वक्त में आकर आदम के साथ टहलता बातें करता। आज का आदम खुदा के साथ शायद बातें करना चाहता है नहीं, लेकिन खुदा आदम के साथ बातें करना चाहता है। हालेलुया। वो उस आदम के साथ भी करना चाहता था, इसलिए अपने बेटे को भेजा, क्योंकि हम वो हमेशा उसके साथ रहें और बाप हमारी इज्जत करेगा। छोटी बात लिखिए, बाइबल मुक़द्दस में लिखा था इख्तियार ठहराया, इख्तियार खो दिया। फिर चूंकि ये इख्तियार खो दिया, तो शैतान इस इख्तियार का दावेदार नजर आता है। यीशु पर 3 इक़साम की ट्रम्पिटेशंस भेजी गई, यानी 3 इक़साम की मुश्किलात, आज़माइशें भेजी गई। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया यरदन के किनारे, यूहन्ना अस्तबागी ने कहा कि मेरे बाद जो आता है वो मुझसे ज्यादा जोरावर है, मैं इसकी जूती के तस्मा को खोलने के भी लायक नहीं। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो रूह और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो यीशु है जिसकी बात यूहन्ना अस्तबागी ये कह रहा है। और यूहन्ना अस्तबागी के बारे में बाइबल ये कहते हैं कि उससे बड़ा कोई नबी नहीं है। वो एलिया का भी अक्स है, वो अलीशा का भी अक्स है, वो यशवा का भी अक्स है, वो गालब का भी अक्स है, वो मूसा का भी अक्स है, वो तमाम तर अंबिया का, ज़करिया का, एमसी का, मिका का, मलाकी का, दानिएल का, हिजकियेल का, हनूक का। लिखा है कि वो अक्स है और तमाम तर नबियों में से बड़ा है, और तमाम तर नबियों की झलक उसमें से नजर आती है। ये है यूहन्ना अस्तबागी, और यीशु के बारे में क्या कहता है, जिस पर हम और आप ईमान रखते हैं। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, कलाम मुक़द्दस को सुनना और इस पर अमल करना मसीही के लिए, एक ईमानदार के लिए अशर जरूरी है। इख्तियार खो दिया, अब इख्तियार का दावेदार जब बपतिस्मा ले लिया, यीशु को आजमाने के लिए जंगल में ले जाया गया। बियाबान के अंदर 40 रोज का फाका है, और जब ये फाका खत्म हुआ तो इब्लीस यीशु को ऊंचे पर ले गया। ये दूसरी आजमाइश थी। यीशु को ऊंचे पर ले गया और ले जाकर कहा कि ये सारी शान और शौकतें, इसका इख्तियार मेरे पास है। वो इस बात को कंडेम शैतान कह रहा है। शैतान ने कहा कि ये इख्तियार मेरे पास है, आदम के पास नहीं है। I have authority, मेरे पास इख्तियार है। ये बात यीशु को मिनिस्ट्री का आगाज करते हुए शैतान ने कही, तो मुझे सिजदा कर, मैं तुझे दे दूंगा। रुपया पैसा, कई दफा लोग ऐसा करते हैं कि रुपए पैसे से खुदा के काम को खरीदना चाहते हैं, रुपए पैसे से खुदा के लोगों को खरीदना चाहते हैं, रुपए पैसे से यीशु को खरीदना चाहता था शैतान कि मुझे सिजदा कर दे, मुझे एक्सेप्ट कर दे,
सामने कि तू मुझे सिजदा कर। ये सारी शान और शुक्र, लग्जरी लाइफ, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, नौकर चाकर, अच्छे घर, आईफोन मैक्स प्रो 12, 13 मैं तुझे दे सकता हूं, तू मुझे सिजदा कर। बहुत छोटी सी बात बज़ाहिर किसी एक मसीही के लिए हो सकती है जो चर्च में भी उस तरह बाकायदगी के साथ नहीं, अगर उसको इस तरह की ऑफर करवाई जाए और 15-20 जितने मार देगा, लेकिन गलत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जहां पर कंप्रोमाइज है वहां पर खुदा की रूह काम नहीं करती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वाइस की किताब में लिखा है कि उसकी रूह, उसकी आंखें तमाम रोज जमीन पर फिरती हैं और उनकी तलाश के लिए आ जाते जिनके दिल कामिल हैं। हालेलुया। उनकी अमदाद के लिए आ जाते जिनके दिल कामिल हैं। हमें इस बात को समझना है। कई दफा हम अपना इख्तियार खो जाते हैं। यीशु के पास इख्तियार है कि वो सिजदा करें या ना करें। He has ability, काबिलियत है यीशु के पास, सोच समझ है। करेगा तो नुकसान। आज जो इंसान दूसरी जगह पर जाकर सिजदा करते हैं उनके लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो नुकसान में जाते हैं। फिर वो एक ज़बूर भी हम गाते हैं, गैरा दे नाल बंदे कोल करार हुन जेरे ओना दे दुख सदा वतन के बथेरे। कोल करार शादी के हो, दोस्ती के हो, गैरा दे नाल बंदे कोल करार हुन जेरे। और हमें दुख बदलेंगे, सुख नहीं बदलेंगे, बरकत नहीं आएगी, दुख आएगा। जो गैरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं, मखलूकुल ईमान में आगे बढ़ते हैं, नाहवार जुए में जुटने की कोशिश करते हैं। इस बात को याद रखें कि यहाँ पर यीशु के पास भी एक इख्तियार है, शैतान के पास भी इख्तियार है। उसने कहा मेरे पास इख्तियार है। और जब यीशु सलीब पर जान देने के बाद आसमान पर जाने लगे तो आखिरी अल्फाज में शाद आज़म ने यीशु ने कहा कि शागिर्दों, मुझ पर ईमान रखने वाले ईमानदारों, खुदा के मुक़द्दसीन लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, खुदा की इस खास उम्मत से यीशु ने ये कहा कि और ये कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यानी अब ये इख्तियार मेरे पास है। जो आदम हवा मेरे पास आएगा वो इस इख्तियार को लेगा। हालेलुया। वही आदम का इख्तियार वापस मिल जाएगा जो खुदा यीशु में होकर खुदा के पास आएगा। अब ये इख्तियार यीशु के पास है। शैतान ने यीशु से कहा, लेकिन यीशु ने जाते हुए साफ फरमाते हुए कहा कि अब ये इख्तियार मेरे पास है। ये इख्तियार यीशु ने मिरास में नहीं लिया कि हिज़ा सन ऑफ किंग, वो बादशाह का बेटा है, उसको इख्तियार मिल गया। ऐसा नहीं है। कई दफा हम ये दुनिया में रहते हुए देखते हैं कि बाबा की, दादा की जो प्रॉपर्टी है उसको आगे शिफ्ट किया जाता है नस्ल में, विरासत में, मिरास में। वो प्रॉपर्टी जो है वो आगे शिफ्ट की जाती है। यानी वो इख्तियार जो है, यानी इस हिस्सा का, दुनिया के इस छोटे से टुकड़े का इस हिस्सा का इख्तियार इस फलां शख्स के पास है और इसको विरासत में मिला है। ऐसा दुनिया में होता है। लेकिन यीशु ने ये इख्तियार मुफ्त में नहीं पाया, जिसका जिक्र यीशु ने इरशाद आज़म मत्ती की इंजील 28वां बाब 18 की आयत में किया। ये इख्तियार यीशु को मुफ्त में नहीं मिला, या किसी ने लाकर प्लेट में नहीं रख दिया, ये यीशु को फजल में नहीं मिला। ये इख्तियार यीशु ने अपनी जान कफारा के तौर पर देकर हासिल किया है। हालेलुया। सलीब पर जान देकर ये इख्तियार लिया है। यीशु ने अपना खून बहाकर इस इख्तियार को लिया है। इसलिए इस इख्तियार की अहमियत को समझने की जरूरत है। ये इख्तियार बहुत बड़ा है। यीशु ने ऐसी हवा में बात नहीं की। अगरचे यीशु हवा में था लेकिन बात हवा में नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने कफारा देकर ये इख्तियार लिया है और ये इख्तियार फिर हमें दिया है ताकि
ताकि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचले और दुश्मन की तमाम तर कुदरत पर गालिब आ जाए। याद रखें, यौम सऊद के बारे में, यीशु के आसमान पर जाने के बारे में सीख रहे हैं। दूसरी बात, यीशु ने अपने लोगों से वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। I will be with you। जहाँ 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। मत्ती की इंजील 28 देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले यीशु ने शहीदों से ये नहीं कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये वह एक जगह है जहाँ पर यीशु ने जब सऊद फरमाने लगा तो नीचे 120 नहीं, तकरीबन 500 के करीब लोग खड़े हैं जो यीशु को जाते हुए देख रहे हैं। बादल आ चुके हैं, फरिश्ते भी आ चुके हैं, यीशु बादलों पर उठाया जा रहा है और यीशु ये अल्फाज अपनी जुबान से सादिर फरमा रहे हैं। और यीशु ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अमेरिका में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुनिया के किसी भी हिस्सा में मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई बाउंड्रीज नहीं है कि खुदा यीशु इस जगह पर ज्यादा काम करता है या खुदा जगह पर ज्यादा काम करता है। जगहें मखसूस होती हैं खुदावंद के लिए, लेकिन उससे बढ़कर बदन मखसूस होते हैं। तो इसलिए इस बात को समझे कि खुदावंद आपके बदन के अंदर रहना चाहता है। ज़बूर 91 में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर रहना चाहता हूँ। जब तुम्हारा बदन खुदावंद का मक़दिस बन जाएगा, रुकी हुई दुआओं का जवाब भी आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सारी इल्तिजाएं आपके दिलों में होंगी, बीमारियों से छूटना चाहते हैं, हालात अच्छे चाहते हैं, परेशानियों से निकलना चाहते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में लिखा है ये तभी होगा जब दिल से बदी निकलेगी और खुदावंद दिल में आएगा, फिर ऐसा होगा। उसने अपने लोगों से वादा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कुछ लोग इस वादे को इस तरह से लेते हैं कि जो कुछ मैं चाहता हूं, you have to do that, अगर तुम मेरे साथ है तुझे ये करना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ है। एक मन की सोच है जो बाइबल के मुताबिक है, उसके साथ होने से आप उस पर इस बात को थोप नहीं सकते कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चले। हाँ, उसके साथ होने से वो आप पर मर्जी जरूर ये थोपता है कि आप उसकी मर्जी के मुताबिक चले। कई दफा आप अपने मंसूबे उसके सामने रखते हो, कहते नो नो, आप तो मेरी मर्जी के मुताबिक चलते। आपने यीशु को उंगली पकड़ाकर चलना है, आपने यीशु की उंगली पकड़कर चलना है, ना कि यीशु को कहना कि तू सारी उंगली पकड़, ऐसे जिधर तो जाना चाहता। ऐसा नहीं है, ऐसे यीशु काम नहीं करेगा। मैंने पिछले दिनों भी इस बात पे वजाहत के साथ आपको कहा था कि जितना आपका ईमान है उतना ही आपका खुदा है। ईमान छोटा है तो खुदा भी छोटा है, यीशु भी छोटा है और रूहुल कुद्स भी छोटा है। अगर ईमान बड़ा है तो रूहुल कुद्स भी पूरी कुदरत से काम करेगा, खुदा भी पूरी ताकत कुव्वत के साथ काम करेगा और यीशु भी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ काम करेगा। हालेलुया। सूरज जब चढ़ता है तो वो पूरी ताकत और कुव्वत के साथ नहीं होता, उस टाइम यानी उसका शैडो होता है। और फिर जब वो चढ़ता जाता है और जब बिल्कुल आपके वस्त्र के ऊपर आ जाता है, सब के ऊपर, फिर उसका कोई शैडो नहीं होता। यानी उस वक्त सूरज अपने पूरे आबोताब के साथ होता है, क्योंकि उसका कोई साया नहीं होता। खुदा भी ऐसे साइड से नहीं बल्कि आपके सर के ऊपर जो है वो सुकूनत करना चाहता। आपके सर के ऊपर जैसे आपके शोले थे, ऐसा नहीं कि शोले दूर से नजर आ रहे थे। On their heads the flame of fire, flame of fire। खुदा के आग के वो रूह की आग के शोले जो थे वो उन्हीं के सरों के ऊपर। They were not watching from far like वो थे आग का शोला, ऐसा नहीं था। हम आने वाले अतवार में ईद पेंटिकॉस्ट को सेलिब्रेट करने वाले तैयारी के साथ आए, दुआ में ठहर कर आए,
इस घर से आए, खुद आपको रूह से भरना चाहता है। उसने वादा किया है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे। ऐसा नहीं है कि लाखों का मजमा हो, करोड़ों लोग हो, मिलियन ट्रिलियंस हो, देन खुदा बड़ी कुदरत के साथ काम करता है। वो 2 दिन में भी उसी कुदरत के साथ काम करता है जितना लाखों में करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। 2 दिन लोगों में भी उसी कुदरत के साथ काम करता है, इसलिए कि उसने वादा किया है। तीसरा पॉइंट, यीशु ने साउथ के दिन रूह कुछ भेजने और कुव्वत अता करने का वादा किया। यह वादा भी ईद साउथ के दिन हुआ है। ईद साउथ के दिन उसने वादा किया है कि मैं रूह कुछ भेजूंगा। ये दूसरा मददगार है और ये आपका हेल्पर होगा, ये मददगार है। कितने लोग चाहते हैं कि मैं रूह से भर जाऊं? कितने लोग ईमानदारी से बताएं कि रूह कुछ से मामूल है? कितने लोग रूह से मामूल हैं जो समझते हैं? प्रेज माइटी गॉड, जोरदार तालियां बजाएं रूह कुछ के लिए, जिसका वादा यीशु मसीह ने फरमाया है। और जब ये वादा किया है तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये वादा हमारे साथ किया गया है। वो कोई एलियंस नहीं है, और लोग नहीं है। इस बात को समझने की ये वादा हमारे साथ है। अगर रूह को जिंदगी में लेना चाहते हैं, कुछ लोग तो रूह को लेना ही नहीं चाहते। They don't feel a need, वो इस नीड को ही नहीं समझते, जरूरत ही नहीं फील करते, महसूस ही नहीं करते। भजन रोल कुछ ना पढ़े, जन रोल कुछ ना पता है, ठीक है खुदा दा बोले, बस पता ही नहीं है, अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे। बाइबल में क्या वो मददगार है इस दुनिया में रहते हुए आपके लिए करामत है, जरूरी है और बहुत अहम है आपके लिए। इतना कि आपको जिस कदर आपके जिस्म को रोटी की ग़िज़ा की जरूरत है, इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा आपको रूह कुछ की जरूरत है। क्योंकि रोटियां खा कर देखते ही कब्र चला जा रहा तो हमेशा की जिंदगी में नहीं जा पाएंगे अगर रूह कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको रूह कुछ हमेशा की जिंदगी में ले जाने के लायक है। सब रूह कुछ की अहमियत को ना समझना, ये भी एक ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर स्मार्ट होना है। यीशु की बात को रद्द करना तो एक बात है, लेकिन इस बात का भी इसमें जरूर होता है कि मुझे नहीं जरूरत, आई डोंट फील नीड, मुझे नहीं जरूरत, मैं महसूस ही नहीं करता कि मुझे रोल कुछ चाहिए, मेरे पता ही नहीं ना मैं सीखा और इतनी जिंदगी काटती थी भाई, टूरे फिरे यहाँ बच्चे ने को ब्याह दे सारा कुछ काटता और रोल को 10 की जरूरत है भाई, इतनी जिंदगी आपने निकाल दी। लेकिन अब जब खुदावंद आपको बता रहे तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। मैं आजाद हूँ, आप रोल कुछ के नाम पे जाओ, दुआ में अगर रोल कुछ को नहीं मांगते तो भी लम्हा फिक्रिया है। क्या दुआ करते हैं, क्या कुछ मांगते हैं? बंगले, घर, आईफोन 12, 15, 14 प्रो मैक्स, अमेरिका दे वीजे, ऑस्ट्रेलिया दे वीजे, कोरिया दे वीजे, मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं ये बना लूंगा, बना के 70-80 साल में सब कुछ खत्म, क्या हासिल होगा? इस बात को याद रखें कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये दुनिया फनी है और हम यहाँ के नहीं हैं, हम उस जहां के हैं जो हमारे लिए तैयार किया गया है, जिसका वादा यीशु ने किया है। और उसमें जाने के लिए रूह कुछ अशहद जरूरी है, उसमें जाने के लिए आपको रूह कुछ की जरूरत है। आप इसकी जरूरत महसूस करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको रूह की जरूरत है। आप महसूस करें या ना करें, आपको रूह की जरूरत है। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए ओवर स्मार्ट ना बने, रूह से बढ़ने के लिए तदबीरें करें, रूह से बढ़ने के लिए दुआएं करें, रूह से बढ़ने के लिए मनाजात करें, रूह से बढ़ने के लिए दुआएं करें, रूह से बढ़ने के लिए इल्तिजाएं करें, रूह से बढ़ने के लिए आप खुदावंद के हुजूर झुकना शुरू करें। रोजा रख सकते हैं, गिरजारी कर सकते हैं, आहोनारा कर सकते हैं, आप कुर्ला सकते हैं और आपको कुर्लाना भी पड़ेगा, क्योंकि रूह आपकी रूह की ग़िज़ा है। हालेलुया, वो आपके रूह की ग़िज़ा है।
تیاری کے ساتھ آئے ہم روح سے بھرنے کے لیے اس جدوجہد میں آگے بڑھیں گے. خدا ان سے روح کو مانگے اور اگر ہم دل سے مانگے تو وہ عطا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ it is very difficult کہ بہت مشکل ہے. روح سے آگے بڑھیں گے تو خداوند کا کام سمجھ کر کریں گے, ملکیت میں. اگر روح سے بڑھ جائیں گے تو اپنا کام جو آپ کرتے ہیں گرانے کا انتظام خداوند کا کام سمجھ کر کریں گے. تمام تر بیماریاں نچاکیاں جاتی رہیں گی. ہاللیلویہ. یہ ہر ملک سے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. آگے چل کر ہم اس پر ضرور لیکچرز بھی کریں گے کہ روح القدس کسی ایک شخص کی زندگی میں ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. کیا اس کی باتوں سے, کیا اس کی حرکتوں سے, کیا اس کے کاموں سے. روح القدس نہ تو آپ کی دعاؤں سے پتا چلے گا کہ آپ روح سے بھرے, نہ آپ کی غیر زبانوں سے, نہ آپ کے اور جو ہے وہ حرکات سے. بائبل مقدس میں اس کا ایک پورا پیٹرن لکھا ہے کہ جو روح سے بھرا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں کام کرتی ہیں جو شو کرواتی ہیں کہ he is filled with the Holy Spirit. یسوع نے ہاتھ اٹھا کر شاگردوں کو برکت دی عید سبت کے دن جب آسمان پر جا رہے ہاتھ اٹھا لیے اور شاگردوں کو برکت دی. لوکا طبیب کا انجیل بیان اس کا 24واں باب اس کی 50ویں آیت 51 52 آپ تلاوت کر سکتے ہیں. لوکا 24:50 51. پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا. آمین. آپ ہاتھ اٹھا کر یسوع نے برکت دی ہے. آج بھی جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو برکت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. آپ بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں کو برکت دے سکتے ہیں. آپ ہاتھ اٹھا کر اپنے خاندان کے لوگوں کو برکت دے سکتے ہیں. ماں باپ کے لیے اگر آج سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کو یہ الفاظ نہیں بولے خدا آپ کو برکت دے, شرماتے ہیں, ہچکچاتے ہیں, تو آج سے بولنا شروع کریں کیونکہ آپ برکت کے منتظر تو ہیں لیکن آپ کے الفاظ شیطان نے بند کیے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو برکت نہ دیں, کیونکہ آپ کے الفاظ آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. یسوع نے اپنے شاگردوں کو جاتے ہوئے کیا کہا کہ خدا آپ کو برکت دے, باپ آپ کو برکت دے. ہاتھ اٹھا کر ان کو برکت دی. اور آج ہاتھ اٹھا کر اپنے بچوں پر برکت ضرور دیا کریں اور یہ روز بروز اس عمل کو کریں. آپ ہاتھ رکھ کر اپنے بچوں کو کہہ سکتے ہیں بیٹا خدا تیرے برکت دے, خدا آپ کو برکت دے. اسے پادری کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو, اپنے بچوں کو, کلیسیا کو ہر جگہ سے برکت کرتا ہے. آپ کا بھی کام ہے. آپ کو خداوند نے اولاد دی ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں برکت کا باعث ہو. آپ ضرور اپنے لبوں کو کھول کر آج سے اس برکت کو اپنائیں اور اپنے بچوں سے کہنا شروع کریں کہ خداوند آپ کو برکت دے. اور آپ روز بروز جب یہ الفاظ بولیں گے آپ دیکھیں گے برکت کس قدر ٹرانسفر